Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 12 accountancy. Yes, yesterday it was explained about the preparing of the income expenditure account and balance sheet. So, one of the things I would like to tell you, the cost of consumable goods in not-for-profit making organization. How this one is calculated according to the question number 21 in your textbook, and what are these? Just my dear, sometimes in questions cost of consumable goods are not given. How this will be calculated? Such items, for the example, sports material, medicine, stationery, postage, so many items are given, etc. That has to be calculated. So my dear, how this one is calculated, both using the language English and Hindi, I would like to explain. Now open question number 21 from your textbook. Calculate the amount of medicine consumed to be debited to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2019. This one is the information of particular opening stock of medicine is equal to 50,000. Just opening stock of medicine, question number 21, opening stock of medicine. This one is the opening stock of medicine, that is given 50,000. 50,000. Closing stock 45,000, more than opening stock, Next information, amount paid for medicine, payment made for medicine during the year, payment during the year is equal to 2 lakhs. And next information given, opening creditors 20,000. Creditors at the beginning, is equal to the amount given of 20,000. And closing creditors at the end, creditors at end of the year, at end 50% of opening capital. 50% of opening creditors. These are the information given about the question, and we have to calculate the medicine consumed during the year
that will be the expenses in recurring nature, so it is debited to income and expenditure account. Direct method, I would like to tell you the direct method. समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा. So first this one income expenditure account का फॉर्मेट बना लें आप. Now draw the line of income and expenditure account. इनकम एंड एक्सपेंडिचर. अल्टरनेटिव मेथड भी मैं आपको बताऊंगा. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आप यहां पर ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया. यहां पर लिख दिया आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. एक्सपेंडिचर अकाउंट. Direct method. This one is the direct method how such consumable goods are calculated. This one is the debit expenditure. Amount, income, and this one is the amount. Now my dear children, the information given: opening stock of medicine 50,000, closing stock 45,000 more than the opening stock, payment made during the year to the creditors 2 lakhs, and creditors at the beginning 20,000, creditors at the end 50% of opening creditors. We have to calculate the material medicine consumed. So, you can write 2 medicine consumed. 2 medicine consumed. Medicine consumed. My dear, just first, what are the payment made during the year? Payment to the creditors, just we can write the payment to the creditors equal to 2 lakhs. Just this way you can see whatever the information given. 2 लाख रुपए हमने क्रेडिटर को पे किया. क्लियर? 2 lakhs पेमेंट किया गया क्रेडिटर्स को. उसके बाद 2 लाख ये पेमेंट किया गया और हमारे पास साल के अंत में कितने क्रेडिटर्स हैं उसे क्या करेंगे? जोड़ देंगे. कुल मतलब नगद और उधार मिलाकर के कुल कितना हमने क्रेडिटर्स को दिया. तो ऐड क्रेडिटर्स एट एंड ऑफ द ईयर. एट द एंड ऑफ द ईयर 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर्स. जो क्रेडिटर्स एट बिगिनिंग है वो हमारे 20,000 के हैं. तो 20,000 का हमने 50% निकाला तो 10,000. सो प्लस 10,000 इक्वल टू 2,10,000. This one is the amount that is credit and cash. 2,10,000 हो गया हमारा उधार और नगद मिला करके. अब हमारे पास ये भी देखना है कि ओपनिंग में कितने क्रेडिटर्स थे. भाई ओपनिंग वाला चीज को सीधा सीधा भी मैं बताऊंगा जैसे हिसाब किया जाता है. लेस ओपनिंग क्रेडिटर्स. ओपनिंग क्रेडिटर्स
ये आपके हैं 20,000 के। $1,90,000। अब 1,90,000 हो गया। अब हमारे पास स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन मतलब 1,90,000 का हमने खरीदा, ठीक है। इसमें जो स्टॉक है हमारा ओपनिंग स्टॉक जोड़ दें, एड ओपनिंग स्टॉक, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन गिवन 50,000 just plus 50,000 2,40,000 2,40,000। अब हमारे पास कितना सामान बचा हुआ है ये हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना सामान हमने यूज किया वो हमें पता लग जाएगा। सो लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन इंफॉर्मेशन गिवन just 45,000 more than opening stock, 45,000 more than opening stock, मतलब जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है उससे 45,000 और अधिक है। तो 50,000 प्लस 45,000 इक्वल टू 95,000 माइनस 95,000 equal to 1,45,000. This one is the amount medicine are consumed in NGO 1,45,000। जो हमारा मेडिसिन कंज्यूमेबल गुड है वह 1,45,000 का कंज्यूम हो गया। एक तो ये डायरेक्ट मेथड है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है, स्टॉक अकाउंट या क्रेडिटर्स अकाउंट बना करके आप भी अल्टरनेटिव मेथड से आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम चलिए आपको सबसे पहले क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं, यहीं पर दिखा देते हैं आपको। बाय प्रिपेयरिंग द क्रेडिटर्स अकाउंट, creditors account, this way by preparing the creditors account, closing balance and opening balance of the creditors and so here you can see creditors account, particular amount, particulars। एक हम बनाएंगे क्रेडिटर्स अकाउंट, दूसरा बनाएंगे स्टॉक अकाउंट। क्लियर माय डियर? सो फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर द क्रेडिटर्स अकाउंट। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर्स गिवन, opening balance of the creditors given 20,000. So you can write over here
creditors always credit by balance, by balance 20,000. सीधा सा फंडा, by balance 20,000 because this one is creditors always shows the credit balance, so by balance opening, and credit balance just the given 50% of opening balance, so you can write over here 2 balance, 2 balance CD just the 10,000. And the amount paid to the creditors, journal entry will be creditors account debit to bank account. So whatever the amount paid to bank, journal entry 2 lakhs, payment made during the year 2 lakhs. कितने का हमने उधार खरीदा, क्रेडिट परचेज, सो जस्ट टोटल ऑफ दिस वन 2,10,000 minus 20,000 equal to by balance credit purchase. हमने कितने का उधार खरीदा, 1,90,000, 2,10,000. अब सीधा सा चलो जनरल रूप में हिसाब किताब करते हैं. ये कहा जा रहा है कि हमारा पिछला 20,000 पैसा बाकी था. फर्ज करो पिछला बाकी था 20,000, तो हमने 2 लाख का पेमेंट दिया, तो 20,000 यदि उसमें से निकाल दिया गया तो 1,80,000, और अभी बकाया है 10,000. अभी साल के अंत में बाकी है तो 1,80,000 में 10,000 जोड़ दिया, 1,90,000 का हमने उधार सामान खरीदा हुआ है. इस साल का उधार कितने का खरीदा हुआ, सीधा सा फंडा देखो, एक जनरल रूप में हिसाब किताब करते हैं. ठीक है बेटा, जनरल रूप में हिसाब किताब करते हैं. हमारे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया है कि हमारा जो पिछले साल का बाकी है दवा का पैसा अभी हमने नहीं दिया है, वो 20,000 रुपये है, और हमने कुछ सामान खरीदा 2 लाख रुपए उनको नगद दिया, और कुछ सामान खरीदा जो हमें नहीं पता है, और तब भी हमारा अभी 10,000 रुपये बाकी, 50% ओपनिंग स्टॉक का 10,000 रुपये बकाया. तो मान लीजिए ऐसे देता है आदमी, जनरल रूप में जाता है, भैया भाई पुराना हिसाब चुकता कीजिए, आप ये पुराना हिसाब चुकता कीजिए, 2 लाख रुपए लीजिए. अब बचा 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए में से पुराना हिसाब निकाल दिया, 20,000 उनका बाकी था, तो 1,80,000 बचा. हमने कहा भाई सामान पैक कीजिए, ये खरीद ली, सामान खरीद लिया, और है 10,000 अभी बाकी रहेगा. तो हम कितने का सामान खरीदे भाई, 10,000 बाकी रहेगा, 1,80,000 नगद और 10,000 हो 1,90,000, वही क्रेडिट परचेज हो गया. सिंपल सा फंडा. अब हमने 1,90,000 का सामान तो खरीदा हुआ है, अब हम बनाने चल रहे हैं स्टॉक अकाउंट. स्टॉक अकाउंट बनाने चल रहे हैं. सपोज दैट स्टॉक हमारा ओपनिंग बैलेंस स्टॉक का 50,000 का है, 50,000 है, और 1,90,000 का उधार खरीदा. कुल कितना हो गया, जोड़ देंगे उसको, तो यहां पर लिखेंगे 2 बैलेंस, 2 बैलेंस कितना है
50,000. और what comes in debit to, यहाँ पर लिख दिया हमने क्रेडिट परचेज या क्रेडिटर टू क्रेडिट परचेज है हमारा, उधार खरीदा हमने, इसको आप क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं। जो पार्टी होती है, स्टॉक अकाउंट, डेबिट और परचेज अकाउंट। क्रेडिट परचेज कितने का? 1,90,000 हमने कैलकुलेट किया है, 1,90,000। अभी हमारा सामान बचा हुआ है कितने का? 95,000 का, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है कर आपको 45,000, ओपनिंग स्टॉक से अधिक है, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा 50,000 का, 95,000 का। तो यहाँ हमने लिख दिया बाई बैलेंस, ये हो गया आपका कितने का? 95,000। अब जो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो हमने सामान यूज किया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो होगा 1,45,000। तो तब तक लीजिए, देख लीजिए वही आएगा। यहाँ पर 2,40,000, ये आपको तरीके से बनाना पड़ता है। 2,40,000 एक मेथड ये है, इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट कॉलम में दिखा सकते हैं। ध्यान रहे, सीधा सा बात है भाई, हमने हमारे पास सामान ओपनिंग स्टॉक 50,000 का था, 1,90,000 का उधार खरीदा, 2,40,000 हो गया। अभी हमारे पास सामान 95,000 का बचा हुआ है, तो जो हमने कंज्यूम किया, जो उपयोग में आया हुआ है, 1,45,000। कितना आसान है, बस ये दिमाग में रखना है। जस्ट यू have to keep in your mind what's the item, just because of that creditor shows the credit balance, so the opening balance of the creditor, that is 20,000, and closing balance of the creditor 10,000, payment made during the year 2 lakh, total 2 lakh, 10,000 minus 20,000 is equal to 1,90,000, that is the credit purchase. Then